morning students, welcome to Gokul Junior College. I am Rajan Chauhan. Today is part 2. Our topic is scope of political science. Last class we have discussed the introduction to political science. Today we are discussing about the scope of political science. We'll see the class now. Scope of political science. Already we have seen the introduction of political science, from where we got these two different terminology, different streams clubbed into one, right? This is clear in the last class. Once again, need not to jump into the last class, we will be wasting our time. So today we will see scope of political science. Before discussing what is a scope, here you have to know some terms like evolution of political science, definition of political science also we have discussed in the last class. But when we are writing the scope of political science, so we have a limited stuff which we have to follow. Now first we will see, when we see this political science, now when we will see the scope of political science, first we have to discuss the definition. Already we have discussed in the last class, yes, but here this definition is important, yes. Then introduction, yes. Introduction also we have to discuss. Then origination, yes. All these three are discussed in the first class, first video. So now what is the heading for all these three means evolution. If the question paper asks you, write about evolution of political science, means you have to write all these three things. Introduction first, then definition, then origination. So this is evolution of political science. In 5 marks he may ask you that question. So you must be aware. If he asks evolution, you must not be confused like, sir to evolution padha hai isne. So this confusion will lose your marks. So evolution is nothing but discussing these three things, that is introduction, definition and origination. Now we will see the scope. In scope we have 8 scopes. We have 8 scopes in which we will be discussing the whole political science. When we will see the first scope, what is the first scope? What is the first scope? Study of society and state in relation to man. In relation to man. So what is the thing we are discussing here? Man is common. So how was his life in society and how was his life in state is the discussion here. In the last class I have given you a box in which we have discussed society and state. Once again I will show you that. Now, man's life in society. How society was run? Society was run by religious doctrines. Then state is run by principles, that is elements. Here it is run by elements. What is elements? We will discuss in next class. Okay, don't get confused. So religious doctrines. So whoever the king was ruling the society, whoever was the leader who was ruling that society was implementing his religion on the people who were residing with him. And second thing, when religious doctrines were running the society, so you must have faith, yes. Here state is ruling the society, that is the elements of state, means government is indirectly ruling and directly also imposing rules and regulations on us. So here will we have faith in government? Means no, we will not have faith. We respect government, yes. We follow government, yes.
but we have faith in government? No. Faith is a different thing. What you believe is different, what you have faith is different. So this is the difference here which you have to know. Then here when you see, will you demand any proofs when it comes to the religious doctrines? Means no. You may be having doubt, what is that, sir? Example, if I ask where is God, can I show the God? No. I cannot give you proof where is God residing, okay? But I believe that God exists. I am here only due to God. This is what we have faith in Him. We don't believe. Believe means it's a myth, but we have faith that God exists. So here we will not demand any proof. Here government is ruling the state. State is nothing but in political science is our country. So here what we are discussing once again, we will demand proof for everything. If government create any initiative, we will demand proof. So this is the different thing in the life of man in society, the life of man in the state. So what political science is saying? Political science is saying it is very complex. It is very complex to explain, but here this is discussion about the two generations. दो जनरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं. एक जनरेशन में आदमी कैसा जिया और एक जनरेशन में कैसा जी रहा है. सो इसको हम बोलते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है. ये कॉम्प्लेक्स इशू को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या चाहिए आपने? पॉलिटिकल साइंस चाहिए. वाई? पॉलिटिकल साइंस is discussing the behaviorism. Political science is discussing behaviorism. Behaviorism क्या है? Next हम discuss करेंगे इसके बाद. I guess students this is clear. So first, what is the first scope? Study of society and state in relation to man. Man का life society और state में कैसा है यहाँ पर हम discuss करें. Why I am discussing in Hindi? Because some students cannot understand if it is totally in English. So that is the reason we are discussing in Hindi also. Society में इंसान कैसा जी रहा था, state में कैसा जी रहा था, हम ये discussion करे हैं. इसमें बताने का क्या है, ये बहुत complex issue है, क्योंकि जब कहीं भी religion की बात आ जाती है तो हम एक तरफ से करेक्ट मानते हैं, एक तरफ से उसको रॉन्ग मानते हैं. सो आप एक रिलीजन को लेके डाइवर्स्ड पब्लिक को रूल नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने पैटर्न को कैसा चेंज करें? एलिमेंट्स ऑफ स्टेट में चेंज करें. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्कोप. वी विल गो विद द सेकेंड स्कोप. यहाँ पर देखो सेकेंड स्कोप में जब आ गए, स्टडी ऑफ स्टेट आ गया. स्टडी ऑफ स्टेट क्या है? ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस करें हम. स्टेट मीन्स व्हाट? कंट्री. हम कंट्री के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. सो स्टेट के बारे में आप कैसा पढ़ सकते हैं? अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बिहेवियरिज्म. यहाँ पर देखो एक वर्ड आ गया बिहेवियरिज्म. इसमें भी टू वर्ड्स दिख रहे हैं, एक बिहेवियर दिख रहा, एक आईएसएम दिख रहा. आईएसएम का मतलब क्या है? आईएसएम को हम जहाँ पर भी वर्ड को आईएसएम ऐड करते हैं हम उसको हम थियरी बोलते हैं. एग्जाम्पल आप स्कूल टाइम्स में देखे होंगे, कम्युनिज्म, नाजिज्म. सो ऐसे वर्ड्स आप देखे थे सोशल में, हिस्ट्री में पढ़े थे आप. कम्युनिज्म, लेनिन के बारे में जब पढ़ रहे तो कम्युनिज्म के बारे में पढ़े थे. होशोमिन के बारे में पढ़ रहे तो कम्युनिज्म के बारे में पढ़े थे. फिडेल कैस्ट्रो के बारे में पढ़ रहे थे, कम्युनिज्म. माओ जेडोंग के बारे में पढ़ रहे थे, कम्युनिज्म. हिटलर के बारे में पढ़ रहे थे आप, नाजिज्म. ये देखो प्रिंसिपल्स ऑफ आईएसएम को आप प्रिंसिपल्स माइंड में रख लो, थियरी रख लो. थियरी ऑफ नाजी इज नाजिज्म. थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या है? साइंटिफिक सोशलिज्म बोलते हैं हम इसको, कम्युनिज्म बोलते हैं. कम्युनिज्म को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक सोशलिज्म. सो ये आईएसएम का इंपॉर्टेंस है. यहाँ पर आने के बाद हम क्या करें? बिहेवियरिज्म करके टॉपिक पढ़ रहे हैं. नाउ सर बिहेवियर प्लस इज्म. सो द प्रिंसिपल्स या थीरी ऑफ बिहेवियर. स्टडी ऑफ स्टेट में हम बिहेवियर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो जनरेशन टू जनरेशन मेंटालिटीज चेंज होते जाते हैं. सो पब्लिक एक टाइम पे जैसे है वो दूसरे टाइम पे वैसे नहीं रहते. सो उनके बिहेवियरल चेंजेस टाइम टू टाइम आ रहा है. सो बिहेवियरिज्म क्या कर रहा? इट इज
So what is behaviorism means? Modern interdisciplinary approach in recording human behavior. क्या है बिहेवियरिज्म का मतलब क्या है? इट इज़ अ मॉडर्न क्यों बोल रहे हैं हम? मॉडर्न का मतलब है हम मॉडर्न वर्ल्ड में आ गए। जब डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे हम ट्रेडिशनल मॉडर्न बोले, तो ओल्ड जनरेशन्स को हम क्या कर रहे हैं? अरिस्टोटल के टाइम से पॉलिटिकल साइंस के बारे में जब जज कर रहे, डिसाइड कर रहे, तो उसको बोल दिया ट्रेडिशनल टाइम। सो उसको सिंप्लीफाई करते हुए, न्यू थिंग्स में एनालाइज करते हुए हम जो डेवलपमेंट्स लाए सब्जेक्ट के अंदर, उसको हम मॉडर्न वर्ल्ड बोल रहे हैं। वो मॉडर्न का डेफिनेशन भी हम डिस्कस कर रहे थे। पॉलिटिकल साइंस इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द पावर इन द सोसाइटी। क्या कर रहा पॉलिटिकल साइंस? पावर के बारे में डिस्कस कर रहा। इसलिए यहाँ पर जब देखते आप बिहेवियरिज्म को, मॉडर्न इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन रिकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर, यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर कर रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर को रिकॉर्ड करने के लिए बिहेवियरिज्म पैदा हुआ। सो यहाँ पर जब देख रहे हैं आप बिहेवियरिज्म कब का कर रहे हैं, यहाँ पर आई एम रबिंग दिस स्टडी ऑफ स्टेट में अपना क्या है? स्टडी ऑफ past, then present, then future। स्टडी ऑफ स्टेट में इंपॉर्टेंस क्या है? कीवर्ड क्या बोलते हो? स्टडी ऑफ पास्ट, स्टडी ऑफ प्रेजेंट, स्टडी ऑफ फ्यूचर। स्टडी ऑफ पास्ट में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ, हम ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे। स्टडी ऑफ प्रेजेंट, देखो पास्ट को पढ़ के प्रेजेंट को एनालाइज करते हुए फ्यूचर को प्लान करना है। क्या है ये? पास्ट को पढ़ना है, रीड द पास्ट, नो द पास्ट, देन प्रेजेंट को एनालाइज करना है और फ्यूचर को क्या करना है? प्लान करना है। सो आज पास्ट में जो प्रॉब्लम्स आए थे गवर्नमेंट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसको हम प्रेजेंट में आने नहीं देना है। एट द सेम टाइम ये एनालाइज करके आपको फ्यूचर में प्लान करना है। सो ये प्लान फ्यूचर के लिए करना है। ये स्टडी ऑफ स्टेट है। विल गो फॉर गवर्नमेंट नाउ। अब हम थर्ड स्कोप को देख रहे हैं, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट है क्या, इसको डिस्कस करने से पहले फिर से एक बार स्टेट को देखेंगे हम। स्टेट और गवर्नमेंट का क्या रिलेशन है? हम यहाँ पर स्टेट एंड गवर्नमेंट की जब बात करते हैं, स्टेट को हम बोलते हैं परमानेंट एसोसिएशन, गवर्नमेंट को बोलते हैं हम टेम्पोररी एसोसिएशन। अब आपको एसोसिएशन क्या है वो भी हम डिस्कस करना है। हम डिस्कस पहले किसको करेंगे? एसोसिएशन को करेंगे। सर गवर्नमेंट को स्टार्ट करें, एसोसिएशन को जब मालूम करना है बताओ। फर्स्ट एसोसिएशन क्या है देखो, एसोसिएशन क्यों फॉर्म करते हैं हम? वेलफेयर के लिए। व्हाई वी फॉर्म एसोसिएशन? टू प्रमोट वेलफेयर। To promote welfare. Associations are formed to promote welfare. That means what is the duty? Duty of state is to promote permanent welfare to the people who reside in it. वही गवर्नमेंट का क्या है? Government's duty is to promote temporarily promote welfare. Why we are saying temporarily? See, first of all अपना कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें गवर्नमेंट किसी का परमानेंट गवर्नमेंट है क्या? नो। एग्जाम्पल इफ यू सी, चाइना जैसा कंट्री में देखे तो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, ही इज प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। ऐसा इंडिया में है क्या? नो। फैन बंद करो बेटा। सो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ का सिस्टम इंडिया में नहीं है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक कंट्री है। सो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट चेंज होते रहता, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट को हम बोल रहे हैं टेम्पररी एसोसिएशन। यहाँ पर टेम्पररी एसोसिएशन, कभी भी गवर्नमेंट चेंज हो सकता। सो जब तक गवर्नमेंट फोर्स में है, जब तक वेलफेयर प्रमोट करना, बस यही इसका ड्यूटी है। नाउ फर्स्ट हम बोलते हैं गवर्नमेंट इज टेम्पररी एसोसिएशन, और इसके बाद गवर्नमेंट को हम बोलते हैं
एजेंसी टू द स्टेट, क्या बोल रहे हैं हम इसको? एजेंसी टू द स्टेट, गवर्नमेंट स्टेट का एजेंट है। दैट इज द रीजन ऑलवेज आई विल बी टेलिंग, सेकेंड ईयर क्लासेस में हम समझाते हैं कि वी द पीपल आर द ओनर्स ऑफ दिस कंट्री एंड पॉलिटिशियंस आर आवर वर्कर्स। एक्चुअली व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी, कैसा बुलाते हम उनको? पब्लिक सर्वेंट, मगर आज के दिन में कोई भी उनको पब्लिक सर्वेंट नहीं बोल रहे, दे आर टेलिंग आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है वो लोग, पब्लिक सर्वेंट है। सो दिस इज द फैक्ट, बट रीजन्स आर डिफरेंट नाउ। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? एजेंसी टू द स्टेट। स्टेट कौन है? स्टेट परमानेंट है। स्टेट का मतलब कौन है? कंट्री है। कंट्री इज परमानेंट, सो स्टेट इज परमानेंट। क्या बोल रहा? परमानेंट एसोसिएशन प्रमोट वेलफेयर टू द पीपल हु रिसाइड इन इट। इंडिया इज अ स्टेट। इंडिया बोल रहा कि मेरे बच्चे जितने भी इंडियंस है उन सबको वेलफेयर प्रमोट करो। वो किसका ड्यूटी है? गवर्नमेंट का ड्यूटी है। गवर्नमेंट का ड्यूटी कब तक है? जब तक वो लोग पावर में हैं। टुडे बीजेपी इज इन पावर। बीजेपी इज लीडर ऑफ ओनली पीपल हु वोटेड फॉर बीजेपी? नो, बीजेपी इज लीडर फॉर एवरी सिटीजन इन दिस कंट्री। वो पूरे इंडियंस के लीडर है। सो हर इंडियन का प्रॉब्लम बीजेपी का प्रॉब्लम रहना है। सो टेम्पररी एसोसिएशन, एजेंसी टू द स्टेट, यस, प्राइम मिनिस्टर से लेके छोटे कॉर्पोरेटर तक, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सब स्टेट एंड सेंट्रल, एवरीवन आर एजेंट्स टू द गवर्नमेंट, वही स्टेट के एजेंट्स है। सो इसको हम, और एक थिंग है, इसको हम बोलते हैं थर्ड एलिमेंट ऑफ स्टेट। इसको हम बोलते हैं थर्ड एलिमेंट ऑफ स्टेट। नाउ ये एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। सिर्फ फिलहाल अब तक क्या याद करो आप? स्टडी ऑफ गवर्नमेंट क्या है? व्हाट इज स्टडी ऑफ गवर्नमेंट मीन्स? गवर्नमेंट इज टेम्पररी एसोसिएशन, गवर्नमेंट इज टेम्पररी एसोसिएशन एजेंसी टू द स्टेट। स्टेट को टेम्पररी एसोसिएशन है, स्टेट को एजेंसी है, एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट में 4 एलिमेंट्स है, वो 4 एलिमेंट्स में 1 एलिमेंट इज गवर्नमेंट। सो विल गो फॉर नेक्स्ट थिंग। Now already we have discussed association. Next element हम स्कोप, नेक्स्ट स्कोप पढ़ रहे हैं इसमें, स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। एसोसिएशन के बारे में अब भी हम डिस्कस करें। एसोसिएशन का मेन मोटो क्या है? प्रमोट वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब क्या है? वेल बीइंग। वेल बीइंग इज नथिंग बट being happy. So now इंडिया के अंदर एक प्रिंसिपल है, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर। व्हाट इज दैट मीन्स? इंडिया एसोसिएशन, टेम्पररी एसोसिएशन को क्यों बनाया? गवर्नमेंट को क्यों बनाया? टू प्रमोट वेलफेयर टू द पीपल। कैसा? वेल बीइंग। वेल बीइंग इज नथिंग बट बीइंग हैप्पी। इसलिए अपने गवर्नमेंट के अंदर पीडीएस स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। अब आप सोचते हैं सर ये कहाँ है, मुझे तो नहीं मालूम। सो इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करेंगे तो रेशन शॉप बोलते हैं हम। वाइट राशन कार्ड लेके जाओ, राशन शॉप में चावल मिलता। सो चावल मिल रहा, ये पॉलिसी किसने बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया। गवर्नमेंट इस किसके अंडर में? पीडीएस स्कीम के, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम क्यों कर रहे? क्योंकि वो एक एसोसिएशन है, वो प्रमोट कर रहा वेलफेयर। जिसके पास मिनिमम खाने के लिए खाना नहीं है उनको खाना दे रहा गवर्नमेंट का ड्यूटी है। देन सिंपल वी हैव सीन डबल बेडरूम हाउसेस, सिंगल बेडरूम हाउसेस। गवर्नमेंट बना के देता गरीबों को। क्यों बना के देता? मिनिमम उनको घर रहना, मिनिमम कपड़े मिलना, मिनिमम खाना देना गवर्नमेंट का ड्यूटी है। क्यों? स्टेट बोल रहा ये पूरे मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे पूरे खुश रहना है। क्यों? कैसे रहना है? विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन। व्हाट इज दैट एसोसिएशन? टेम्पररी एसोसिएशन। हु इज द टेम्पररी एसोसिएशन? गवर्नमेंट। व्हाट इज देयर ड्यूटी? प्रमोट वेलफेयर। ओके, सो दिस इज द एसोसिएशन। नाउ कमिंग टू इंस्टीट्यूशंस। हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है। एग्जाम्पल इफ यू सी इंस्टीट्यूशंस में हम कैसा कर रहे हैं? फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, देन मोरालिटी के बेस पे भी इंस्टीट्यूशंस है,
एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी अपने पास इंस्टीट्यूशंस है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन बोलो या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलो, देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में कौन है? पॉलिटिकल एक्टर्स है, पॉलिटिकल लॉबिस्ट है, देन प्रेशर ग्रुप्स है, विसिल ब्लोअर्स है। वैसे हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहा? एजुकेशन प्रमोट कर रहा। लाइक अब्दुल कलाम सर समझाए अपने को, द ग्रेटेस्ट वेपन इन योर लाइफ इज एजुकेशन। अगर ये रहा आपके पास, आप पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते नहीं, पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते। सो इंस्टीट्यूशंस में क्या है बोले तो हम इसको सिंपली एजुकेशन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या समझा रहा आपको? सिंपल, इफ यू सी मोरालिटी समझा रहा, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन्स, देन एजुकेशन। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या सीख रहे आप? मोरालिटी सीख रहे। मोरालिटी क्या है? मोरालिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम वेरी शॉर्ट में पढ़ेंगे। मोरालिटी एथिक्स के बारे में डिस्कस करता हूं। एथिक्स, व्हाट इज एथिक्स? ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड एंड बैड, ये है एथिक्स। सो एथिक्स कौन समझा सकता? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही मिलता आपको। यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ मोरालिटी आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। रिलीजन, रिलीजन का क्या इंपॉर्टेंस है? हर जगह रिलीजन क्यों इन्वॉल्व होता? देखो, जो पर्सन रिलीजन को सही नहीं समझता वो टेररिज्म में जा सकता, क्योंकि रिलीजन प्रोपगेट्स लव, ट्रूथ एंड पीस। हम ऐसे कई चीज़ नेक्स्ट टॉपिक में भी हम डिस्कस करते, डिसआर्मामेंट के बारे में डिस्कस करते, कोल्ड वॉर के बारे में करते, टेररिज्म के बारे में हम पढ़ते। उन सब में एक ही बेस पॉइंट है जो पब्लिक फॉलो नहीं कर रहे, वो है मोरालिटी। मोरालिटी फॉलो नहीं कर रहे, वो लोग रिलीजन को सही नहीं पढ़ रहे। देयर इज नो रिलीजन इन दिस वर्ल्ड विच सेज किल समवन, but there is one statement which is in every religion, that is propagate or promote love, truth and peace. So ये कहाँ से सीखते हम एजुकेशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से क्या सीखते हम? एक सिंपल सिटीजन जो पॉलिटिकल एक्टर बनता या पॉलिटिशियन बनता, सो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको यहाँ पर समझाया जाता कि आप एंटर हो गए टेम्पररी एसोसिएशन के अंदर, आपको क्या करना है? पब्लिक को वेलफेयर प्रमोट करना है। दैट इज द रीज़न इनको ओथ सेरेमनी रहता, ओथ सेरेमनी रखते हैं उनको। ये लोग शपथ लेके बोलते कि हम सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं। ये सब आपको मालूम ना, कई फिल्म में भी आपको देख सकते हैं। ये सब यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में होता। इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस का, गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि इकोनॉमिकली भी कंट्री को आगे लेके जाने के लिए। एसएससी में भी आप लोग पढ़े जीडीपी करते। व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल, ये आपको जीडीपी का और ज़्यादा खुलासा आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स टीचर आपको जीडीपी के बारे में ज़्यादा पढ़ाएंगे। सो ये इंस्टीट्यूशंस है जिसको हम बैलेंस करते हैं। बाय दिस वी हैव फिनिश्ड टुडेज क्लास, सो विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।